Good morning, all of you. How are you all? We have completed 5 chapters in the second book. The next 6 number chapter is Weathering the Storm and Reshma. Harsh Mender is the writer of this chapter. The story about 7 years after his mother death of the narrator, Prashant, a young man, went to see his friend at the Resma. It was a small town in coastal Odisha. It was some 18 kilometers from his village, Kalikuda. In the evening, a cyclone hit the village. Heavy and continuous rain brought about havoc. The water moved into his friend's house neck deep. The velocity of the wind was 350 kilometers per hour. Houses had fallen, trees were uprooted, people and animals flowed with the current. The cyclone continued for the next 36 hours. It is a story about the disasters, and also a character of Prashant is also playing a role in this story, short story, written by the Harsh Mender. To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family took refuge on the roof. Two coconut trees fell on the roof of their house. The tender coconuts from the trees supplied food into the family for several days. Prashant had to stay there for the next 2 days. Then Prashant left for his village to seek out his family. He took a long sturdy stick to guide him through the waters. After some distance, he found two friends of his uncle who were also returning to their village. In every village that they passed, there was barely a house standing. Prashant was sure that his family could not have survived this catastrophe. That's called महाविपत्ति in हिंदी catastrophe है. तो उड़ीसा में क्या होता है, अक्टूबर 1999 की बात है, 1999 में, कि चक्रवात ने हजारों लोगों की जान ले ली थी. द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of the villages. कई सैकड़ों घर उजाड़ दिए, कई गांव उजाड़ दिए. For 2 dreadful nights, Prashant, the young man was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to village. Did you find his family? कहने का मतलब क्या है कि एक युवक प्रशांत जो है 2 भयानक रातों तक एक मकान की छत पर असहाय पड़ा रहा. तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निश्चय किया. डिसाइडेड टू गो हिज विलेज. उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या हुआ, अपने परिवार से मिला या फिर अपनी फैमिली को ढूंढ पाता है. द टाइमिंग पीरियड ऑन 27 October 1999, 7 years आफ्टर एक मदर डेथ, यानी कि अपनी माता की मृत्यु के 7 वर्ष के पश्चात 27 अक्टूबर की बात है 1999 को, प्रशांत अपने मित्र के पास एक दिन के लिए कहाँ गया. प्रशांत हैड गॉन टू ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ रेस्मा, यानी कि ब्लॉक मुख्यालय था. प्रशांत अपने मित्र के पास रेस्मा नाम के कस्बे पर गया. अ स्मॉल टाउन ऑफ कोस्टल ओडिशा, यानी कि उड़ीसा के तट पर एक छोटा सा कस्बा था. सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, लगभग उसके गांव से उसकी दूरी जो थी गांव की वो 18 किलोमीटर थी. टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, अपने मित्र के साथ दिन बिताने के लिए. इन द इवनिंग, शाम को, डार्क एंड मीनिंसिंग स्टोर क्विकली गैदर्ड, कहते हैं कि शाम को एक काला, खतरनाक और हानिकारक तूफान एकदम से आया. Winds beat against the houses with a speed and a fury that Prashant had never witnessed before. हवाएं ऐसी गति और क्रोध से मकानों पर प्रहार कर रही थी कि प्रशांत ने उनको पहले कभी देखा नहीं था. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. अंधकार छा गया. घनघोर और लगातार वर्षा के कारण पुराने पेड़ उखड़ गए और भूमि पर गिर पड़े. Uprooted, that's called in हिंदी गिरना, जड़ से उखड़ना. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. हवाएं ऐसे गति से और क्रोध से मकानों पर प्रहार कर रही थी, कहने का मतलब है चीखें हवा में गूंज रही थी, क्योंकि लोग और मकान तेजी से बहे जा रहे थे. The angry water swirled into the friends' houses neck deep. The building were to brick and mortar and was strong enough to survive the devastations of the wind's velocity 350 kilometers per hour. यानी कि क्रुद्ध पानी उसके मित्र के घर के भंवर के रूप में बहाया और वह गर्दन की ऊंचाई तक पहुंच गया. इमारत ईंट और सीमेंट से बनी थी और इतनी मजबूत थी कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवा के विनाशकारी प्रहार को सहन कर खड़ी रही. बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली गिव with the crashing of trees that had got
uprooted and fallen on their houses. Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. कहा गया है कि परिवार का आतंक उस समय गहरा था जब उखड़े हुए पेड़ उनके मकान पर जा पड़े। यह आधी रात के आसपास हुआ और उन पेड़ों ने मकान की छत और दीवारों को क्या पहुंचाई? क्षति पहुंचाई। रूफ एंड वॉल्स। द क्रेज डिस्ट्रक्शन वॉट बाय द साइक्लोन एंड द surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. कहा गया है कि चक्रवात के कारण भारी विनाश हुआ और समुद्र की लहरों का प्रवाह जो अगले 36 घंटे near about 36 hours continuously surge of the ocean continued the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. यद्यपि हवा की गति अगले दिन सुबह को कुछ कम हो गई थी, विंड स्पीड जो है। टू स्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउसेज, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ। कहते हैं कि मकान में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके मित्र का परिवार कहाँ चला गया? छत के ऊपर चला गया। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ द डिवास्टेशन वॉट बाय द सफर साइक्लोन। यानी कि प्रशांत उस आघात को कभी नहीं भूलेगा जो उसे उषा काल यानी कि प्राप्त काल में अनुभव हुआ, जब उसने विशेष चक्रवात द्वारा किए गए विनाश की प्रथम झलक देखी। इन फ्रंट ऑफ हिज आइज अ रेजिंग डेडली ब्राउन सीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आइज कुड सी। यानी कि कहते हैं कि जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी प्रत्येक चीज को ढके हुए विनाशकारी घातक और भूरे रंग की पानी की चादर दिखाई देती थी। Everywhere was the water. Only fractured cement houses still stood in a few places. कहीं कहीं पर अभी भी क्या था? कुछ सीमेंट से बने हुए टूटे फूटे मकान दिखाई दे रहे थे। Bloated animal carcasses, what that's called swimming. Carcasses, the dead body of the animals, you can say. Carcass in meanings in English, the dead body, the dead part of the body of the animal, that's called carcasses in English. एंड ह्यूमन कॉफ्स क्लॉटेड इन एवरी डायरेक्शंस। आदमियों की बॉडीज जो है कॉफ्स मैंने होता है मृत शरीर, यानी कि लाश जो उसको कह सकते हैं, से थॉट कर रहे थे वाटर में। डायरेक्शन एवरी ऑल राउंड इवन यू ऑफ ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, पुराने पेड़ सब गिर गए। टू अकाउंट कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ द देयर हाउसेज। 2 कोकोनट के पेड़ यानी कि नारियल के पेड़ भी उनके छत के ऊपर गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम blessing in disuse because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from the starving in the several days that followed. कहा गया कि चारों ओर विशाल पुराने पेड़ गिर चुके थे, उनके मकान की छत पर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। एक तरह के वरदान सिद्ध हुआ कि उन पेड़ों पर लगे कोमल नारियलों के आगे कई दिन तक फंसे परिवारों को क्या मिला? भुखमरी से बचाए रखा। देयर इज नो नीड ऑफ द फूड्स ड्यू टू द रीजन ऑफ द कोकोनट्स, द पीपल्स ऑल्सो सर्वाइव्ड coconuts, they eaten the coconuts. Totally the disaster came the timing period of when the story started in 1999. The Prashant had gone to his friend's houses and also he saw big disasters and the houses floating, the carcasses and the corpses, human bodies also be the floating in the water, चारों तरफ से पानी में तैर रहे हैं। इस प्रकार की भीषण त्रासदी को किसने देखा है अपने सामने? प्रशांत ने देखा है। ही वॉज इन द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड एंड फाइनली ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग द सेवरल डिजीज दैट फॉलोड ड्यू टू द रीजन ऑफ व्हेन द कोकोनट्स ट्रीज फॉल डाउन टू द हाउस ऑफ द प्रशांत। दे यूज टू कोकोनट टू ईट देयर देमसेल्व्स। दे ऑल्सो यूज एट द कोकोनट्स एज अ फूड। उन्होंने भोजन के रूप में उसका प्रयोग किया और उनको भूख से बचाए रखा। ये बहुत बड़ी एक चीज़ इसमें स्टोरी के स्टार्टिंग में जो दिखा रखी है। तो टोटली इधर तक आपको लास्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेजेस दैट फॉलोड। यहाँ तक आपको करना है, ठीक है ना? ट्रांसलेशन करना है और वर्ड मीनिंग करना है। मैंने कुछ वर्ड मीनिंग आपको बताए हैं। आपको कुछ भी डिस्ट्रक्शन है, इसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा नाश विनाश, ठीक है ना? ग्लिम्स झलक बोलते, डिवास्टेशन होता है बिल्कुल आपदा टाइप। कारकेसेस मैंने बताया डेड बॉडीज ऑफ द नॉट ह्यूमन बींग्स, ओनली एनिमल्स कारकेसेस हैं। कॉर्प्सेज है CORPS, इट्स कॉल्ड ह्यूमन बॉडी, डेड बॉडी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कारकेसेज एंड कॉर्प्सेज। इधर को समझना थोड़ा है। ये कारकेसेज है, क्या है? डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स,
A corpse says dead body of human beings. There is a difference between dead bodies. Both are dead bodies. Dead bodies, okay. But the difference, human beings को कहते हैं क्या, corpse, और animals की body को कहते हैं carcasses, okay. तो यहाँ तक के वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन करना है नेक्स्ट वीडियो में।